I welcome today, Dr. Ankit Khandelwal on the MOOCs session. So, sir has got his MBBS from the prestigious King George Medical University, Lucknow. He's an MS Anatomy and a very popular, teacher amongst a lot of students. So today we are going to have discussion of few questions with sir about his journey and how is he seeing MBBS right now and the future trends. So, sir, today the first question, sir, how has been this journey from the day one when you were thinking to become a doctor, and now you are, going to be participating in the COVID fight as well. So, how is your journey been, sir, so far? Okay, first of all, thank you so much, Mr. Chirag. I think I'm audible. Sir, very clear, sir. Okay, Absolutely. okay. And thank you, Mr. Dhananjay, sir, for your great insight about this whole MBBS course. And yes, feeling privileged, first of all, feeling privileged that sitting in front of all of these and young students and their parents. So if they have any query, then only I will be more than happy to answer them. See, MBBS journey is a great journey. It is a journey of 5.5 years. The thing is, you enter as a boy or a girl, and you exit as a man or a woman. You're both mentally, physically, and emotionally. So in those 5.5 years, you see a lot of things inside your medical college or hospital, which non-medical won't be able to see in his or her entire life. You see a lot of patients, lot of emotions, lot of this and that. So yes, it is an exciting journey and better being felt than being it is not able to describe in words. So for that you have to go and feel it. It is a totally exciting journey from day one to the last day. And regarding this COVID, yes, COVID, it's all no. There's a pandemic, so we all are prepared. And yes, it is a tough situation, but we have to be more strong in compared to it. And yes, it is an infection, so just treat it like a viral infection and be safe than sorry. Just avoid getting the infection, and that's all you can do. If at all you got the infection, that make your immunity, make your physical, mental toughness to overcome that infection. That is all that can be done, and that is all which is being done. Don't rely on the vaccine. Vaccine is being prepared, has been prepared, will come in time. When it will reach you, how you will. So don't rely on that. Rely on your own, what you have right now in your hands, and then let's see how much delay the vaccine comes and whatever it is. So till then, that's all which I can tell you. Sir, now my next question would be, how do you see the value of just an MBBS degree? During your times and now, what do you think? Just plain MBBS का value होगा क्या PG and super PG? How is it basically, sir? Plain MBBS, I mean, plain MBBS का value है, but वो plain MBBS here to be on a practical purpose. अगर आप MBBS तो MBBS है क्यों? MBBS is a course of 5.5 years. उसमें आपको 19 subjects पढ़ाए जाते हैं 4.5 years. Then 1 year is for internship. Internship is basically उसके लिए कि your mind should be clear कि आगे हमें क्या करना है. Now, if you want to bring value to your life, to be very frank, value to your life and to your patient's life, it is better always to go to any specialty. कोई भी specialty लीजिए, be it preclinical, paraclinical, clinical, जो भी है. So you should have a specialty, because that after that you are focused कि मुझे इसमें I can progress further on. So plain MBBS का value ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. It has a very significant value, but if you have a chance to increase its significance multifold, then I guess everyone should go for it. So my personal advice is go for the PG degree, and yes, it is a quite an important one. So yeah, that is my personal advice. Great, sir. So I think there is a poll also been conducted on the same for the students. Sir, meanwhile, the next important question to you is, sir, अभी जब sir was discussing, Dhananjay sir was discussing about the data, NEET में 16 lakh students appear कर रहे हैं, but government seats बहुत कम है. तो I mean, what does a student do? अगर given an option, मुझे अगर government seat India मिल रहा है या government abroad मिल रहा है, and vis-a-vis अगर private India में मिल रहा है, so what is your recommendation in terms of considering a private medical college and the infrastructure currently across India? What is your feedback on that as well, sir? Yes, that's a very nice question, Chiragji. Now, I've been into this medical field for a couple of decades now. In fact, this June only I've completed 2 decades. I entered in 2000, this is 2020, same month of June only.
So as in these last 20 years, I have been working in at least 5 to 6 states, worked both in private colleges as well as government medical colleges. Now the difference is, see, ये जो MBBS का कोर्स है, MBBS का कोर्स एक, अब आप तो नेक्स्ट एग्जाम आ गया, वन एग्जिट एग्जाम है, तो आप कहीं से कीजिए MBBS, आपको दो तीन चीजें देखनी है. एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है. इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस, टू बी वेरी फ्रैंक, there's a term known as ghost faculty, GHOST, ghost faculty, which is very much rampant. तो इतना ज्यादा उसका rampant है ghost faculty that department is run by practically one person. On papers they may show you, I'm not saying every college, but yes, many colleges which I know, I can't say their names, many colleges are there. The whole department is running on one faculty in India, private medical colleges, and there the fees, you all know कि fees status क्या है. So वहाँ students कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, better ask them. It is not a very good situation. Government college, if you get it, obviously financially it is good, patient wise it is good, but again हम सबको समझना है that we are going, हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं from school life to college life. So school life में he is very much protected, college life में he is left independent after first year. So वहां पे बच्चे को खुद अपने आप डेवलप करना है कि मुझे ये वैसे पढ़ना है, वहां ऐसे जाना है, तो ये he should have a guidance. Without guidance वो भटक जाएगा. To be very frank, simple भाषा में he will get distracted. कहाँ जाऊं, particularly ये जमाना जो मोबाइल फोन का, लैपटॉप का है, इसमें भटकना बहुत आसान है. So better है कि, और फाइनेंसेस अगर आप देखेंगे तो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, some are better, but most of them they have a very sorry state of affairs. So अगर बाहर का ऑप्शन है आपके पास तो you can surely go for it, क्योंकि आपको डिग्री लेके, चाहे आप इंडिया से लीजिए, बाहर से लीजिए, you have to give an exam. So अगर आप motivated है, someone is over there to guide you, be it online or offline, who's there to guide you, then obviously after 5 years you will be in a much better state. It depends on आपने 5 साल कैसे बिताए, क्या आपने वहां पे गाइडेंस लिया, या आपने ऑनलाइन किससे गाइडेंस लिया, क्या नहीं लिया, that all depends on that. So yes, पिक्चर ऐसी है जो कि रियल पिक्चर है, तो कुछ पॉइंट्स बता दिए, तो anyone can decide on that. That's all what I can say right now. तो अभी ऑब्वियसली जैसे आप, करेक्ट सर, और आपने जैसे लाइसेंस एग्जाम के बारे में बताया, सो जनरली वही इंडिया में ट्रेंड हुआ है कि बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि एक हफ्ते के लिए फैकल्टी चले जाएंगे. तो आपका क्या व्यू है कि क्या एक हफ्ते में पढ़ाई होगी या फिर कंटिन्यूस ऑनलाइन पे पैरेलली 5 साल तक सपोर्ट मिले, क्या बेटर रहेगा सर? अब देखिए बॉस, इट इज वेरी, मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें आंसर देने का भी ज्यादा वैल्यू नहीं है. अगर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, मैं उसे 5 मिनट बोल दूं, भाई ये तू क्लच दबा, गियर बदल, हो गया, मैं जा रहा हूँ, उसका मैं कल सड़क पे उतार दूं तो क्या होगा उसका. तो बेटर क्या है, बेटर आपका, अगर कोई 4-5 दिन के लिए फैकल्टी जा रहा है, उसने आपको बताया कि हाँ जी ये टॉपिक्स हैं, आप पढ़ लेना, वो चला है, I mean, he has his own work. और अगर कोई रेगुलर टच में, सी ये जो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इतना कुछ इंटरनेट का वर्ल्ड में, इतना कुछ सब कुछ चल रहा है, सो वी शुड यूज इट इन अ बेटर वे. हम इसको सब तरह से यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट वे. अगर एजुकेशन में इफ यू आर यूजिंग द इंटरनेट, एंड इसकी वैल्यू वी हैव बीन रिकॉग्नाइजिंग मोर इन द फ्रॉम द पास्ट 3 मंथ्स, जब से ये आपका ये लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ है. सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ इंटरनेट. इससे बढ़िया टाइम नहीं होगा आपको समझने के लिए. को पहले लोग कहते थे नहीं यार ऑनलाइन में मजा नहीं आता, नाउ दे आर सीइंग कि हाँ इट इज एन ऑप्शन. पूरे ऑफिसेस चल सकते हैं, पढ़ाई तो छोटी चीज है, द होल ऑफिसेस आर रनिंग. सो यस, आई मीन अब तो सब कुछ ओपन है, सब कुछ दिख रहा है. सो ऑब्वियसली अगर डेली टच में ऑनलाइन है, देन इट इज बेस्ट, इट इज द बेस्ट थिंग टू. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस हैं, बट उसके पहले एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ सर. अभी तो गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि 26 जुलाई को नीट एग्जाम रहने वाला है. तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने भी आपके टाइम में एंट्रेंस एग्जाम दी होगी, तो व्हाट शुड बी सम काइंड ऑफ सीक्रेट मंत्रा या सक्सेस की चाबी क्या रहेगी सर, अगर आप रेकमेंड करेंगे तो? सक्सेस की चाबी पुरानी कहावत है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. तो अब दूसरी बात ये कि जो वर्क किया तो किया आपने, पढ़ा अच्छे से, नहीं पढ़ा अच्छे से, दैट इज ऑल अ पास्ट. तो सेकंड थिंग इज नेवर क्रिब ओवर द पास्ट. पहले क्या हुआ, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे घर में भाई की शादी थी, दादी बीमार हो गई, ये हो गया, वो हो गया, भूल जाओ. दैट इज ऑल गॉन इनटू द पास्ट. अब अपने सामने क्या है, नाउ दिस इज, यू हैव अराउंड अ मंथ लेफ्ट, 30 डेज लेफ्ट. आप एवरेज दिन में 5 घंटे भी सो सकते हैं, चलिए 6 घंटे सो गए, एट दैट एज दैट इज पॉसिबल. सो अगर आप एवरेज 6 घंटे सोते हैं, यू हैव अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स, चलिए 2 घंटे आपने निकाल दिए.
आपके पास एवरेज 15 घंटे हैं। अब 15 घंटे व्हाट वी हैव टू डू इन 15 आवर्स। 15 आवर्स में लास्ट 1 मंथ डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम रिवीजन। तो रिवीजन करते जाइए करते जाइए करते जाइए। अब रिवीजन में क्या स्ट्रेटेजी लेनी है, आपको देखना है आपका वीक सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 चीजें हैं। नॉर्मली मैंने यह देखा है कि फिजिक्स हैज ऑलवेज बीन अ टफ थिंग फॉर अ मेडिको जो प्रिपरेशन कर रहा है। सो ऑब्वियसली अगर वो टफ पार्ट को आप अगर इस 1 मंथ में यूटिलाइज कर गिव इट 10 डेज 12 डेज, उसको अगर मैं टफ सब्जेक्ट को आपने यूटिलाइज कर लिया तो केमिस्ट्री बायो में नॉर्मली दे आर मोर ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस, concepts are easier than physics। तो अगर आपने फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है, ऑब्वियसली अपने लास्ट के कुछ महीनों में यू मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो उसको रिवीजन इज मच सिंपलर देन रिवीजन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स आर नॉट रिपीटेड, न्यूमेरिकल्स में नंबर बदल दोगे आंसर चेंजेस, सो दैट इज कॉमन सेंस। केमिस्ट्री बायो दे हैव लिमिटेड न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में हैव लिमिटेड न्यूमेरिकल्स, बट फिजिक्स में दे कैन चेंज अ नंबर, आंसर चेंजेस, सो यू हैव टू डेवलप सम कॉन्सेप्ट्स। और जैसे चिराग जी ने पूछा, क्योंकि को पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आई गेव माय एग्जाम अ कपल ऑफ डेकेड बैक एंड इन आवर टाइम आई हेल फ्रॉम द स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश से हूं मैं, तो मैं यूपी सीपीएमटी होता था पहले। एट माय टाइम suddenly the paper was set by IIT Kanpur. Now we all know IIT Kanpur is the #1 institute of engineering in India. So उनको बोला गया कि you conduct CPMT. So obviously we anticipated कि physics paper tough आएगा, और आया भी। So luckily I had my physics sorted out. So उस समय physics sorted out थी, तो obviously rank अच्छी आ गई, तो लखनऊ मिल गया। That is, I mean, chemistry bio भी अच्छी थी, but obviously you have to get more into it. So आपको physics अगर better कर दो, तो आपका suddenly you have much much edge over others, because the rest of the population are thinking only chemistry bio physics छोड़ो छोड़ो। अगर आप थोड़ा सा टाइम दें समझने के लिए, physics is an interesting subject, obviously you can score much in physics। so that is that was my mantra, and which I have been telling to all my juniors in the past 20 years कि हाँ, इसको अगर strong hold रखोगे, then you have much higher chances to succeed in NEET, getting good ranks, and obviously getting good ranks means better choice of colleges। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने पहले बताया कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे जर्नी में। आपको मतलब 12th तक या स्कूल तक अभी सपोर्ट रहता है टीचर्स का और पेरेंट्स का, बट अभी ये जर्नी है जो आगे की प्रोफेशनल डिग्री की, वो यू हैव टू टेक अप ऑन योर ओन, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फिजिक्स का इंपॉर्टेंस इन द नीट, परफेक्ट है सर। नाउ स्टूडेंट्स, इफ देयर आर एनी क्वेश्चन सर के लिए, फील फ्री टू टाइप इन, आप क्विकली टाइप इन कीजिएगा and we'll be happy to answer that questions। सर एक क्वेश्चन आया है मरियम के पास से, what is the demand of oncology in India? Again, Mariam has asked a question, demand of oncology in India। See, I would advise go step by step। डिमांड क्या होता है, कैंसर बढ़ेगा, डिमांड ऑन्कोलॉजी का बढ़ेगा ना। राइट नाउ यू थिंक ऑफ गेटिंग एंट्री इनटू एमबीबीएस। अब आप देखिए 5-6 साल में द होल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड में चेंज, जैसे अभी चेंज हुआ है, तो अभी इतने ज्यादा का नहीं सोचना। अभी अपने को टेक स्टेप बाय स्टेप। एमबीबीएस हैज 19 सब्जेक्ट्स। वो 19 सब्जेक्ट्स के देयर आर वेरियस सब स्पेशलिटीज, अराउंड 40 to 50 सब स्पेशलिटीज। बेस्ट वो है इफ यू गो थ्रू इट, आप धीरे धीरे जाइए, किताब पढ़िए, हॉस्पिटल जाइए, पेशेंट देखिए। See, there's a whole different thing। It is not the right time to discuss that। If you have completed your MBBS and if that was the motive, then we would have advised in that detail। But best part है, 5 साल is a very huge number of time। 5 साल is a huge number of time। आप 5 साल के बाद you decide on your own। मेरे को पेशेंट के साथ अच्छा लगता है, मेरे को लैब में अच्छा लगता है, मेरे को सीटी स्कैन की मशीन में अच्छा लगता है, मेरे को लेक्चर थिएटर में अच्छा लगता है, मेरे को बच्चों के संग अच्छा लगता है, मेरे को सर्जरी काटने में मजा आता है, मेरे को आंख के साथ, तो वो डिपेंड करता है। that is why there MBBS is not a correspondence course। it is the reason MBBS के लिए कॉलेज है। अगर आप सब कुछ ऐसे ही समझ लोगे तो डिमांड सप्लाई गेम, ये कोई बिजनेस नहीं है। इट इज नॉट अ बिजनेस की ये डिमांड आ रहा है तो मैं इधर ऑन्कोलॉजिस्ट पैदा कर दूंगा, ऐसा नहीं चलता। सो वेट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सो खिचड़ी को धीरे धीरे पकने दो, बिरयानी पकने दो, धीरे धीरे अच्छी बनेगी, जल्दी जल्दी नहीं होता। That is what I can। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम श्रेयस। ही इज आस्किंग दैट एमबीबीएस अगर इंडिया में करे या रशिया में करे, उसमें किस तरह का फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं है।
कोई फर्क नहीं है। हाँ, एमबीबीएस एमबीबीएस right, रहेगा, एमबीबीएस जी एमबीबीएस जी, रहेगा। आप correct, आप 5 स्टार में खाना खा लो आप घर का बना खाना खा लो, खाना अच्छा होना चाहिए, आपको उसे सही से चबा के डाइजेस्ट करना चाहिए। कहाँ से खा रहे हो वो डिपेंड नहीं करता। तो एमबीबीएस आप जी, कहीं से करो, एट द एंड मैंने कहा ना 5 years के लिए देयर इज समवन टू गाइड यू कि 5 साल बाद इन विच पोजीशन यू आर। To be very frank, correct, from the last 4 or 5 years, I am in a private college. I have been seeing students here कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, and I have been seeing students outside India because I have been traveling outside India. Student दिल्ली में आते हैं, we interact with them. There is जो student समझ गया टाइम का वैल्यू, who got the guidance, he is at a much better level than जो student एकदम ही, क्योंकि एमबीबीएस में ऐसा नहीं है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इट इज अ बैलेंस, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। आप पढ़ाई कीजिए, आप लाइफ एंजॉय कीजिए, बट ये नहीं है मैं खाली एंजॉय ही कर रहा हूँ पढ़ना भूल गया, या खाली पढ़े सही जा बात, रहा हूँ लाइफ ही नहीं जी। वो दोनों केसेस में यू आर गोइंग टू बी एट द गोइंग टू बी एट द फॉल्ट, और correct, गोइंग टू बी एट correct, द नॉट इन द गुड पोजीशन। सो बैलेंस बना के चलना है, गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए, बिकॉज एमबीबीएस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। ऐसा नहीं है आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े हो गए पास, यहाँ के आपको प्रोफेशनल कोर्स है, आपको गाइडेंस चाहिए, पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। जी, आइए तो सही करेक्ट, एक बार सही आप है, घुसेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट। वही करेक्ट मैंने बोला, आई सर, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। करेक्ट सर। हरलीन कह रही है कि आपका एक्सपीरियंस एमबीबीएस के दौरान और एमडी के दौरान, मतलब एमएस एनाटॉमी के दौरान क्या डिफरेंट था, मतलब एमबीबीएस और एमएस में व्हाट वाज द कोई डिफरेंस यू फेल्ट अंडरग्रेड और मास्टर्स में, कुछ नया डिपेंड्स ऑन लर्निंग्स ऐसा? डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। अगर आपका कैरेक्टर जी, है खुश रहने का, आप खुश ही रहोगे। अगर आपका कैरेक्टर है परेशान हो कैसे रहो, तो डिफरेंस बस ये है कि एमबीबीएस में यू हैव द होल फोर्स, आपके साथ 150-200 बच्चे हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है। पीजी में यू आर नाउ वेरी मच सीनियर, आपको पूरा डिपार्टमेंट खुद चलाना है, आपको खुद ही सब कुछ करना है। बट देयर आर आल्सो सीनियर्स इन पीजी हु आर देयर टू गाइड यू। सो एमबीबीएस प्रोफेशनल कोर्स, always there should be some senior। अगर कॉलेज में सीनियर नहीं है, then there should be someone with whom you can talk on phone कि हाँ जी सर मुझे, यार मैडम मुझे प्लीज आप ये बता दीजिए हाउ टू। there should be some guidance, that is what I'm telling you, there should be a continuous guidance apart from your parents, family members, should be someone you trust, should be someone to tell you। experience तो हमेशा it is good, only life is all about enjoy, you should enjoy your life। आप एमबीबीएस करो ना करो, कहाँ से करो, but your life should be enjoyable। at the end of the day life should be enjoyed, तो enjoy कीजिए टाइम को अपने आप। as you will reach pg you will get to know यहाँ कैसे रहना है, तो उसकी चीज तब की तब हो जाएगी। but yes, nice experience, overall beautiful experience। ग्रेट सर। अभी एक प्रियंका का क्वेश्चन है और आई थिंक नीतीश कुमार भी कह रहे हैं सर, अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा लो रहेगा, फिर भी क्या एमबीबीएस का ड्रीम पॉसिबल है? कि मतलब आपने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह सब देखा होगा, तो व्हाट डू यू थिंक सर, इज फाइनेंस अ कंस्ट्रेंट एमबीबीएस बनने में सर? अब ड्रीम में सच्चाई कुछ भी पॉसिबल है। अगर ड्रीम आपका स्ट्रांग है तो कुछ भी पॉसिबल है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो आप, कुछ भी नहीं है तो भी बैंक लोन देगी, अगर थोड़ा बहुत है तो भी आप बाहर से, यू कैन सॉर्ट ऑफ ऑप्शन। दीज थिंग्स वर नॉट देयर व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अवर यूजी। यू गाइस आर वेरी लकी, आपके पास ये सब चीजें हैं। आपको ऑनलाइन में द होल मोक्स टीम इज देयर टू सपोर्ट यू। देयर वाज नो वन टू सपोर्ट अस, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी वर फेसिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ रैगिंग। तो वो एक अलग एस्पेक्ट था जो कि अब होता नहीं है। नाउ रैगिंग हैज नॉट, इज एब्सेंट फ्रॉम देयर। सो यस, अगर आपका ड्रीम सच्चा है देन ऑब्वियसली देयर विल बी वेज। You ask Chirag ji will guide you, Dhananjay sir will guide you, they will guide you। So उसका प्रॉब्लम नहीं है, आपका ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम है हो जाएगा काम, बट ड्रीम सच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यार हो जाए तो अच्छा है। ड्रीम शुड बी देयर, द रियल टफ ड्रीम। अगर ड्रीम है, फायर है, तो हार्ड वर्क होगा सर। होगा एब्सोल्युटली सर, आई कंप्लीटली अग्री सर। थैंक यू वेरी मच। आई अंडरस्टैंड आपके दूसरे भी कमिटमेंट्स है, कोविड वाले भी। तो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, देन मे बी सर यू, आई अंडरस्टैंड यू हैव अ कॉल ऑफ योर ड्यूटी। सो ओके, नितेश इज सेइंग माय ड्रीम इज रियल। हाँ, मरियम इज आस्किंग सर, एमबीबीएस के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। For joining civil services, you need a basic graduate degree। Basic graduate degree you need। MBBS का फायदा क्या है? Now let me tell you, myself, I have like 4 or 5 known people, my batchmates, my junior senior, who are right now IAS officers।
I mean, today only we got a WhatsApp group of our college. There's a Dr. Mishra in Delhi. He's the DM of South Delhi. Now he opened a COVID, the world largest COVID hospital was opened by him, a 10,000 bedded hospital in South Delhi. Now he was our batchmate, so he also had a dream कि मुझे IAS निकालना है. Right now he's on the front pages of the Times of India. तो आपका ड्रीम की और दूसरा फायदा, after doing MBBS in civil services you have to opt for a subject. Now there is an option for medical sciences. You can choose medical sciences. Second thing, when you go for the interview, then obviously the interviewer, they would like that someone from the medical background should be there in the IAS lobby. Why? Because जैसे right now there is a pandemic situation. Now all those IAS officers, DMs who have a medical background, their district is faring much better. उनकी जो district है, that is उनको पता है in and out क्या है hospital का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन खाली ये नहीं है कि बस सड़क और ये सब बनाना है, उसको हॉस्पिटल्स भी देखना है. सो यू कैन सी राइट नाउ विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, अ मेडिकल ग्रेजुएट शुड एंटर मच मोर. अभी क्या 1% एंटर कर रहे हैं बस, बट देन विद द increasing time we will see 5 to 10% of medicos should enter into IAS. This MBBS knowledge is going to help you a lot, is going to help you. आप हर साल देखिए टॉप 10 में से 2-3 मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे रहते हैं. जो टॉप 10 जो इनका रिजल्ट आता है, दिल्ली के बच्चे हैं, लखनऊ के बच्चे हैं, जयपुर के बच्चे हैं, टॉप 10 में से 2-3 मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं. सो ट्रेंड्स आर चेंजिंग एंड देयर नॉलेज इज हेल्पिंग देम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. उसमें बहुत हेल्प कर रहा है. So that is what I am seeing right now after all these years. So that is a good way. If you are planning for that, go with it. But MBBS भी अच्छे से पढ़ना है, IAS की तैयारी भी करनी है, क्योंकि ये मेडिकल्स के सब्जेक्ट्स are asked in your interview में plus you in the theory paper भी पूछा जाएगा. So yes, you can go for that. That is another option. सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अनफॉर्चुनेटली सारे हम ले नहीं पाएंगे, बट अगेन एक लास्ट, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस है. सर बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी कोई कह रहा है कि सर कि दिल्ली की बेस्ट कॉलेजेस क्या है, कोई पूछ रहा है साउथ में बेस्ट कॉलेज क्या है. तो सर ऐसा कोई रैंकिंग का लिस्ट है गवर्नमेंट कॉलेजेस का इंडिया का जो रेफर कर सकते हैं? या रैंकिंग का लिस्ट है, बहुत सारी मैगजीन्स में ऑनलाइन सब रैंकिंग आती है, बट लेट मी टेल यू, वो रैंकिंग आर 50% ट्रू 50% फॉल्स. लेट बी अवेयर ऑफ दैट रैंकिंग, क्योंकि रैंकिंग में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है. वो रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो बेटर है जो आपको कॉलेज चूज करना है उस कॉलेज में आप वहां पर कोई कांटेक्ट है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ है, आप स्टूडेंट से बात कर लीजिए कि सर व्हाट डू यू थिंक, आपके आसपास के कॉलेजेस में व्हाट शुड आई टेक. तो बेटर है आप स्टूडेंट से बात कीजिए. रैंकिंग विल गिव यू अ रफ आइडिया, बट डोंट ट्रस्ट दैट रैंकिंग, बिकॉज सेम ईयर में 4 रैंकिंग्स में अलग अलग कॉलेजेस हैं. हमेशा टॉप 2-3 में AFMC, एम्स, CMC, वेलोर रहता है. AFMC, एम्स आपका कौन सा हो गया, दिल्ली के 1-2 कॉलेज हैं, मुंबई के 1-2 कॉलेज हैं, वो रहेंगे क्योंकि उनका नाम इतना है. बट सिनेरियो चेंजेस, तो बेटर है आप बात कीजिए, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके बारे में, देन यू विल गेट अ रफ आइडिया. आई मीन द कॉलेज ने सारे, वी कांट टेल यू द होल रैंकिंग. अब रैंकिंग में आपको क्या प्रेफर है नहीं पता. वेरी ट्रू. सो एग्जैक्टली, आई थिंक द बेस्ट टिप जो आपने दिया है कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से बात करें तो काफी अच्छे से आइडिया आ जाएगी, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो उनको रियलिटी पता है. उसमें भी स्टूडेंट नीड्स टू बी सीरियस बने, ऐसा नहीं वो मजाक कर दिया उसने आपके साथ. तो आप 2-3 स्टूडेंट से बात कीजिए, उसने मजाक कर दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा है, आ जाओ. तो यू हैव टू बी, यू हैव टू जज योरसेल्फ ना कि हाँ should I trust this person or not. जी सर, जी. Correct. All right, sir. Thank you very much, sir. It was a great interaction with you. Thank you very much, and thank you for your time, sir, on the MOOCs platform. And hopefully, we will be seeing you soon for the future sessions as well. Thank you, sir, and all the best for your COVID duties as well, sir. Thank you, sir. Stay safe, all of you. Stay safe. पहले जिंदा रह लो. Stay safe. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you.